Good evening, students. And once again, I am back with a new story, The Thief Story by Ruskin Bond. This is your chapter 2 in supplementary reader. So, as you can see in the picture, there are two characters. We will study about them. And there's a small quotation: the best way to get rich is by good, honest, and hard work. So, let's enjoy the chapter. This is Ruskin Bond, the writer. This is a small biography of Ruskin Bond. You can read for your knowledge. And these are the two quotations which are based on the theme of the chapter. Sorry works when a mistake is made, but not when trust is broken. So in life, make mistakes but never break trust. Because forgiving is easy, but forgetting and trusting again is sometimes impossible. Yes, this is the theme, because if you break somebody's trust, then it is not easy to gain it again. Because you can, if you make a mistake and say sorry, it is over. But if you break a trust, then it is not easy to go through it. And like this only, the piece of paper, if you crumble a piece of paper, you can make it correct, you can make it flat again, but the signs of crumbling will be there always. So in the same way, if you break somebody's trust, there will be some things will linger on. So this is the theme of the chapter. Now let's go through the summary first. Summary इसका पूरा सारांश है. This story has been written by Ruskin Bond. The story has a simple plot. Plot माने theme. उसका जो plot है simple है, with important message. There is a small time thief who befriends a struggling author. So there is a small thief. Okay, small time thief means the छोटा मोटा चोर who befriends a struggling author, जो एक उभरते हुए author लेखक से दोस्ती करता है. In the plans of making a steal, क्यों? Why he makes friends with him? Because he wants to rob him. Anil, the struggling author, is a good fellow who wants to teach Hari Singh how to read and write. And Hari Singh, Anil, he's a very good person and he wants Hari Singh to read and write. Gradually, Anil develops trust in Hari Singh, but Hari Singh has been waiting for the right moment to make a killing by doing what he's best at. So, Anil starts believing in him, but Hari Singh, as his nature is, he waits for a chance to rob him, and he gets a chance. After stealing money from Anil, Hari tries to go away forever. But some inner voice stops him. But there is an inner voice, conscious. It does not allow him to go away from there. He returns to Anil because he wants to live a life of respect. This question is often asked: why Hari Singh returned? Because he wants to live a life of respect. Anil does not show that he knew about the incident and accepts Hari Singh with open arms. Thus, a well-intentioned person tries to inform a teenager who had diverted from the correct path. So, character of Anil has been shown as a forgiving person. He knows that Hari Singh has robbed him at night, but still he does not show. He knew everything, but he acts as if he does not know, and he tries to reform him from the diverted path, from the wrong path. So this is a very nice story. So for your benefit, I have divided the chapter into 7 parts. So if you will read the 7 parts, you will get the summary in detail. So Ruskin Bond is a famous writer. The thief story is well-known story. In this story, this is the main theme of the lesson. The writer shows reformation of a criminal is best achieved through love and understanding rather than punishment. So if you want to reform, if you want to correct a criminal, a मुजरिम, अगर किसी मुजरिम को सुधारना चाहते हो तो बेस्ट वे क्या है? थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रेम और समझाने से, rather than punishment, बजाय punishment के. So here the first part is meeting with Anil, how he meets him, where he meets him, all these things are there in it. Then wanted to work for him. Then there's Hari Singh, he wants to work for Anil. What work does he do? All this is here. Then Hari Singh, grateful for getting education. So Anil starts giving education to Hari Singh and he is very grateful for him. Then no regular income from Anil, because Anil, as we have told, that he was an upcoming author. He does not have a regular income, so whenever he gets money, he gives to him. So there is no regular income. Anil robbed off his money. Then Anil robs him of his money. So you can read this in detail, that how Anil is being robbed of his money. Okay. So you can read this. Everything is in detail here.
Then Hari Singh's dilemma. Now dilemma is the confusion when his inner voice says that he should not go and actually he wants to go. So there is a dilemma, there is a confusion, there is a collision inside him. So he is not able to decide what to do, and ultimately what he does, that is a dilemma. Then Hari Singh back to Anil with his money. Then Hari Singh come back with money to Anil. So this is all about detailed summary of the story, and you will get all the question answers, all the important things in these summary 7 points. Now these are the word meanings. In case if you don't have a dictionary with you, so you can go through the word meanings of each page, page number 8. Okay. Now we'll start the chapter. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. So he's saying मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला, मैं 15 साल का था और मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत मेरा हाथ बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल हैंड था, यानी कि मेरा चोरी में बहुत अच्छा हाथ था. अनिल वॉज, कहाँ मिला वो अनिल को? अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, एक कुश्ती का खेल देख रहा था वो, जब उसने उसको अप्रोच किया. वॉज अ बॉय 25. अनिल की एज कितनी थी? 25. ये अनिल का डिस्क्रिप्शन है. टॉल लीन फेलो, लंबा सा पतला सा लड़का था वो. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और वो बहुत ही ईजी गोइंग, यानी जिसको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. काइंड और सिंपल लगा उसको अपने पर्पस के लिए. अपना पर्पस मीन्स चोरी के लिए. I hadn't much luck of late and I thought I might be able to get into young men's confidence. वो समझ गया कि उसको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ईजीली वो इसको बेवकूफ़ बना सकता है. ठीक है. पिछले कुछ दिनों से वो कहता है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा था और मैंने सोचा कि इस नवयुवक को मैं आराम से बेवकूफ़ बना पाऊँगा, अपनी जीत पाऊँगा, इसका विश्वास जीत पाऊँगा. यू लुक अ बिट रेस्टलर योरसेल्फ. उसने कहा तुम तो खुद ही एक पहलवान लगते हो. आई आस्क्ड लिटिल फ्लैटरी. फ्लैटरी माने चमचागिरी. उसको वो चमचागिरी करने के लिए, फ्लैटरी माने क्या होता है? फॉल्स प्रेज. वो उसकी फॉल्स प्रेज करता है कि अरे तुम तो खुद ही पहलवान लगते हो. इन मेकिंग फ्रेंड्स. सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, उसको अनिल को भी अजीब लगा क्योंकि उस समय पतला दुबला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, डू आई डू रेसल अ बिट. उसने बड़ी मॉडेस्टली, बड़ी नम्रता के संग कहा, हम्बली कहा कि येस आई, कभी कभी मैं थोड़ी बहुत पहलवानी मैं भी कर लेता हूँ, रेसलिंग कर लेता हूँ. ठीक है. मॉडेस्टली माने क्या होता है? हम्बली. मॉडेस्टली माने क्या होता है? हम्बली. ठीक है. हरी सिंह आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने वो एक नया नाम रखता था, बिकॉज जो चोर होते हैं वो कभी भी अपने एक नाम को कंटिन्यू नहीं करते. ठीक है. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. ठीक है. और इसकी वजह से वो हमेशा अपने पुलिस से और अपने पिछले वाले काम जिनके संग काम करता था उनसे आगे रहता था. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रॉजर. फिर अनिल ने इधर उधर की उससे बातें करी रेसलर्स के बारे में. ये पेज नंबर 9 के वर्ड मीनिंग्स है. ये पेज नंबर 9 आ गया. थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. ये सब उसने बात करी. परहैप आई हैव मिसजज्ड माई मैन. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. उसने शायद अपने उसको मिसजज किया. उसने उससे पूछा क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो? कैन यू कुक. क्या तुमको खाना बनाना आता है? उसने पूछा येस आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. उसने फिर से झूठ बोला, बिकॉज हरी सिंह की आदत थी झूठ बोलने की. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं शायद तुम्हें खिला भी सकता हूँ. ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द Chumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. तो ये एक बहुत बड़ा कैरेक्टर पता लगता है हरी सिंह का. एक तो उसने अपना नाम झूठा रखा पहले, दूसरा उससे झूठ बोलता है कि आई कैन कुक, और जब वो खाना बनाता है तो इतना ख़राब खाना बनाता है कि अनिल उससे कुछ नहीं कहता भले ही, लेकिन वो पूरा खाना वो एक आवारा कुत्ते को दे देता है, स्ट्रे डॉग को दे देता है, और उसको कहता है जाओ तुम जाके सो जाओ. बट आई मस्ट जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग. पर मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा, मुस्कुरा के उसको अपील, मतलब उसको अट्रैक्ट करता रहा अपनी तरफ, और अल्टीमेटली वो हंसने लगा. लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड. उसने फिर उसके सर पे हाथ फेरा, थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड ही टीच मी टू कुक. उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं. उसने उसके झूठ को कुछ नहीं बोला. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हरी सिंह को उसने टीचिंग सिखाया, उसको लिखना पढ़ना सिखाया, कैलकुलेशन सिखाया. उसको कुछ नहीं आता था. आई वॉज ग्रेटफुल. इसके लिए वो भी उसका एहसानमंद हुआ. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव.
उसने कहा अगर मैं एक बार एजुकेटेड हो जाऊंगा तो मुझे कोई मेरी लिमिट नहीं रहेगी, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ लाइफ में मैं वो सब चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी जो होता है उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, और जो अनपढ़ होता है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो यही चीज़ को उसने बोला। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day. आई थिंक आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. अब वो क्या करता था ना, चाय वाय पीने के बाद वो रोज़ सामान खरीदने जाता था, घर की सप्लाईज यानी घर का राशन वगैरह खरीदने जाता था। और इसमें जो वो पैसे उसको देता था घर का सामान लाने के लिए, उसमें वो 1-2 रुपया चोरी कर लेता था, प्रॉफिट बना के रख लेता था। और शायद अनिल को ये बात मालूम थी, लेकिन ही नेवर सेड एनीथिंग टू हिम. सो यू सी दैट thief is always a thief. He is doing his crookedness again and again somewhere or the other. फिर पेज नंबर 10 पे हम आ जाते हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स है ये. फिर अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स. बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन इरेगुलर. फिट्स एंड स्टार्ट एक फ्रेज है इंग्लिश का जिसको हम बोलते हैं इरेगुलर, यानी कि उसकी इनकम, जब हमने एक पॉइंट आपको बताया था ना, ही डज नॉट हैव अ रेगुलर इनकम, वही है. ही वुड बोरो 1 week, लैंड द नेक्स्ट वीक. एक हफ्ते वो किसी से उधार लेता, फिर अगले हफ्ते वापस किसी को देता. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बिकॉज ही वॉज अ राइटर. उससे चेक आते थे तो वो चिंता करता रहता था चेक आता आया कि नहीं आया. बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट. जैसे ही मिलता वो सेलिब्रेट करता. ही सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. वो मैगजीन्स के लिए लिखता था. अ क्यूर वे ऑफ मेक अ लिविंग. क्यूर माने क्या होता है? स्ट्रेंज. क्यूर माने क्या होता है? स्ट्रेंज. एक अजीब तरीका था उसका जीवन जीने का. One evening he came with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक बार एक वो बंडल, खूब सारे नोट एक बंडल लेके आया और उसने कहा कि उसकी बुक बिक गई है. उसने पब्लिशर को, प्रकाशक को अपनी बुक दे दी है. At night I saw him tuck the money under the mattress. उसने वो सारा मनी टक माने दबा के रख दिया, हाइड कर दिया उसको अंडर द मैट्रेस, अपने गद्दे के नीचे. उसने उस मनी को टक कर दिया, दबा दिया. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had done nothing in my line of work. और मैं कम से कम 1 महीने से उसके लिए काम कर रहा था और उसको चीटिंग, शॉपिंग में जो उसको पैसे देता था शॉपिंग के लिए, उसमें वो चीटिंग करता था. उसके अलावा उसने अपने लाइन का कोई भी काम नहीं किया था, यानी कोई भी चोरी नहीं कर पाया था वो. I had every opportunity for doing so. और उसको आज ये अपॉर्चुनिटी मिली थी. अपॉर्चुनिटी मीन्स ओकेजन. उसको आज ये मौका मिला. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. अनिल ने उसको दरवाजे की एक चाबी भी दे रखी थी जिससे वो कभी भी अंदर बाहर हो सकता था. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन. ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दैट अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर. वो बहुत विश्वास करता था. वो बिना वजह उसने कभी भी हरी सिंह पे कोई अविश्वास नहीं किया. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. और इसीलिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था उसके साथ उसको चोरी करना उसकी. इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब केयरलेस मैन. समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब. उसने कहा अगर कोई लालची आदमी हो तो उसको रॉब करने में एक अलग है, क्योंकि उसको रॉब करने में एक डिफ़िकल्टी होती है ना, उसमें उसको अफोर्ड करता है वो. अफोर्ड करना माने क्या होता है कि टू बी एबल टू डू समथिंग, यानी कि ही हैज़ टू डू समथिंग, एबल टू डू समथिंग, ही कैन अफोर्ड. बट अ केयरलेस मैन, जिसको पता ही नहीं चल रहा उसकी चोरी हो रही है, तो उसको चोरी करने में क्या मज़ा. ठीक है, क्योंकि सारा प्लेजर ख़त्म हो जाता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरी सिंह ये क्यों कहता है कि अनिल को लूटने में मज़ा नहीं आता. वाई डज ही से दैट आई डू नॉट एन्जॉय? बिकॉज ही वॉज वेरी केयरलेस एंड ही डिडंट इवन नोटिस दैट ही इज़ बीन रॉन्ग्ड, ही वॉज बीन रॉब्ड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कई बार. इस क्वेश्चन को संग संग में ध्यान रखते जाएंगे हम. नेक्स्ट हमारा आता है अनिल वॉज अस्लीप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी. अब रात हो गई और अनिल जो है वो सो गया. ठीक है. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow, shipping out of the blanket, slipping out of the. अनिल सो गया और एक बीम ऑफ मूनलाइट माने
कि एक बीम माने क्या होता है, रे ऑफ लाइट। बीम माने क्या होता है, रे ऑफ लाइट। तो एक लाइट चंद्रमा की रोशनी अंदर आ रही थी, फेल ऑन द बेड, और बेड पे आ रही। आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था और सिचुएशन को सोच रहा था क्या करूँ। अगर वो पैसे ले लेता है, ही कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। से ट्रेन का टाइम पता था जो लखनऊ जाती है ट्रेन, उसने कहा मैं इसको पकड़ सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और वो धीमे धीमे अपने ब्लैंकेट से बाहर खिसका। स्लिप माने सड़क के निकलना, ठीक है। I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. और वो उसने देखा कि वो अनिल सो रहा था बहुत मज़े से, और उसका चेहरा जो था बिल्कुल पीसफुल था। अनलाइंड, अनलाइंड माने कोई निशान नहीं था उसके चेहरे पे, कोई शिकन नहीं थी। ही वॉज वेरी क्वाइट विदाउट स्ट्रेस, पीसफुली सो रहा था वो। फिर माई हैंड स्लिड अंडर द मेट्रेस, उसने धीमे से अपने हाथ को मेट्रेस के नीचे घुसाया, स्लिड किया, ठीक है। स्लिड माने स्लिप्ड ही होता है, स्लिप्ड, ओके। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उसने सर्च करने लगा गद्दे में कहाँ है नोट। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, और उसने बिना आवाज़ के उसको नोटों को गद्दे के नीचे से निकाल लिया, बिकॉज ही वॉज एक्सपर्ट इन हिज वर्क। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने अपने सोते सोते में ही एक सांस ली। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और वो करवट लेके दूसरी तरफ सो गया, टुवर्ड्स मी। उसने उसी की तरफ करवट ले ली, यानी जिस तरफ से उसने हाथ डाला था चोरी करने के लिए, उसी तरफ उसने करवट ले ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, एक पल के लिए वो एकदम स्टार्टल्ड हो गया। स्टार्टल्ड माने बिविल्डर्ड, हैरान, एक वर्ड है बिविल्डर्ड, ठीक है। बिविल्डर्ड, एक पल के लिए वो बिविल्डर्ड हो गया, हैरान हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और लेकिन फिर धीमे धीमे, क्रॉल माने मूव स्लोली, और धीमे धीमे मूव करता हुआ वो रूम के बाहर चला गया। क्रॉल्ड। When I was on the road, I began to run. और जब मैं रोड पे था, I began to run. फिर मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist. मेरी कमर में मैंने नोट्स को छुपा के रखा था, नोटों को। Hold there by the string of my pajama, I slowed down to work. और उसने उसको क्या कर रखा था, अपने पजामे की स्ट्रिंग से बांध रखा था ताकि वो गिरे ना, और इस तरह से वो करा। तो पेज नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ओके। फिर क्या हुआ, When I reached the station, I did not stop at the ticket office. उसके बाद वो दौड़ता दौड़ता जब स्टेशन पे वहाँ दौड़ने लगा, उसने अपने जो नोट्स थे अपनी कमर में रखे हुए थे और पजामे के नाड़े से उनको बांध रखा था, ठीक है। और When I reached the station, और जब वो अब धीमे धीमे वो उसने सब नोटों को गिना, है ना, और ये उसने जब नोटों को गिना तो उसने ये भी पाया कि 50 के नोटों में कितने थे, 600 रुपीज़। तो उसके कितने थे, 600 रुपीज़ थे, ठीक है। और ऐसा उसको लग रहा था कि अब वो क्या होगा, बहुत रईस हो जाएगा, ही विल बिकम वेरी रिच विद दिस नोट। और उसमें एक लाइन है जिसमें मिस हो गई है, दैट ही विल लिव अ लाइफ ऑफ अ अरब। वो कहता है कि मैं एक अरब की तरह अपनी ज़िंदगी जीऊँगा। अरब जो तेल के कुएँ जिनके होते हैं ना, उनकी तरह, ठीक है ना। वो कहता है कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, यानी 1-2 हफ्ते में एक अरब की जिनके बड़े बड़े तेल के कुएँ होते हैं उनकी तरह अपना जीवन जीऊँगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never brought ticket in my life. वो चोर है, वो टिकट खरीदेगा क्या, तो कभी भी उसने टिकट नहीं खरीदा। But dashed straight to the platform, वो सीधे प्लेटफॉर्म पे गया। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस छूट रही थी उस समय स्टेशन से। The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. और ट्रेन अभी स्पीड पकड़ ही रही थी, अभी टाइम था, और मैं चाहता तो जंप करके किसी भी एक कैरेज में, एक डब्बे में घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, हेजिटेटेड माने क्या होता है, हिचका, फॉल्टर्ड। इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, फॉल्टर्ड। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, अब क्या रीज़न था ये उसको नहीं पता, लेकिन उसका दिल गवाही नहीं दिया कि वो ट्रेन में कूदे, ट्रेन में जाए। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और उसके भागने, टू गेट अवे मीन्स भागना, है ना, दूर जाना, उसका चांस चला गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो उसने पाया कि वो deserted माने abandoned, वीरान, abandoned, 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 deserted, यानी कि खाली, वीरान। I had no idea where to spend the night. अब समझ में नहीं आ रहा था रात कहाँ बिताएं, ट्रेन तो चली गई। I had no friends, believing that friends were trouble more than help. वो ये विश्वास करता था कि फ्रेंड्स मुसीबत में ज़्यादा डालते हैं मदद करने के।
and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और वो किसी को क्यूरियस भी नहीं करना चाहता था किसी होटल में रह के. क्यूरियस माने क्या होता है? ईगर. वो नहीं चाहता था कि कोई ईगर होए कि अरे ये कौन है, होटल में कहाँ से आया, ये सब इन्फॉर्मेशन उसको देना नहीं चाहता था. तो उसने वो आइडिया भी ड्रॉप किया. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज अ मैन आई हैड रॉब. एक ही व्यक्ति को जानता था और वो था जिसकी उसने घर में चोरी की. लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड. और वो धीमे धीमे पैदल ही पैदल चल दिया, बाज़ार में आ गया. और अपने छोटे से करियर में, क्योंकि उसकी लाइफ ही छोटी है, अभी तो कम उम्र का था, उसने ये लोगों के फेस पढ़ता था. वो चोरी करने के पास जब उनके घर में चोरी हो जाती थी तो लोगों के चेहरे पे क्या भाव आते थे वो पढ़ लेता था, वो जान लेता था. तो वो बताएगा क्या क्या भाव होता है. जैसे ग्रीडी मैन, कोई लालची आदमी के घर में जब वो चोरी करता था तो वो फियर शो करता, डर शो करता था. द रिच मैन शोड एंगर. जो अमीर होते थे वो गुस्सा दिखाते थे, एंगर शो करते थे. पुअर मैन, जो गरीब होता था, वो एक्सेप्टेंस शो कर लेता था. एक्सेप्टेंस माने क्या होता है? अप्रूवल्स, अपनी स्वीकृति देता था. क्या करे? वो कहता था भगवान की यही इच्छा है, क्या किया जाए. गरीब आदमी सरेंडर कर देता है बहुत जल्दी. बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. उसे लगा कि अब जब अनिल को जब ये पता लगेगा कि मैंने उसके घर में चोरी कर ली है तो उसके चेहरे पर एक ही भाव आएगा और वो क्या होगा? सैडनेस. ना तो वो उसको डर लगेगा, ना उसको एंगर आएगा, ना वो अप्रूव करेगा, केवल एक उदासी आ जाएगी. नॉट फॉर द लॉस ऑफ द मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. किस चीज़ के लिए? विश्वास खोने के लिए, फेथ को खोने के लिए एक उसके चेहरे पर उदासी आएगी. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन. दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट इन द चैप्टर. इसको बोलते हैं कि क्लाइमैक्स है ये, है ना, कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच. अब उसने अपने आप को एक मेडन कह रहे मैदान में, मैदान है सॉरी, मैदान में, यानी कि मैदान आप जानते हैं ना, ओपन एरिया. तो मैदान में अपने आप को पाया. अ लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ड्रिजल माने हल्की सी बारिश, ठीक है, लाइट रेन, ज़्यादा तेज़ नहीं. एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, उससे उसको डिस्कम्फर्ट होने लगा, अनईजीनेस, पेन होने लगा. एंड सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. फिर धीमे धीमे बारिश तेज हो गई. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन. उसका शर्ट और पजामा उसके बदन से चिपक गए, सर्द गीले होके. एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई. और एक ठंडी हवा चलने लगी जो उसकी उसमें फेस से छुल के जाने लगी. ये पेज नंबर 12 के वर्ड मीनिंग्स हैं. अब क्या हुआ? फिर वो फिर से वापस बाजार चला गया, ठीक है. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. क्लॉक टावर माने घड़ी. जो घड़ियाल होते हैं ना, पहले ज़माने में बीच शहर में एक बड़ी सी घड़ी लगाई जाती थी. इसके नीचे ऐसे पुल टाइप का रहता था जिसके नीचे आदमी लोग बैठ सकते हैं. तो वो वहाँ जाकर बैठ गया, ठीक है. फिर क्या हुआ उसके बाद? द क्लॉक शोड मिडनाइट. 12 बज चुके थे, आधी रात हो गई थी. आई फेल्ट फॉर द नोट. तभी मुझे नोट की याद आई. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. डैम्प माने वेट, गीले. वो सारे नोट गीले हो गए थे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी बाद में. अनिल मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा. शायद अनिल उसको सुबह सुबह 2-3 रुपये दे देता और सिनेमा वगैरह देखने के लिए खुश होके. बट नाउ आई हैड इट ऑल. पर अब तो मेरे पास सारे नोट थे. आई कुडेंट कुक हिज मील. मैं उसका खाना भी नहीं पता. रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर. अब वो कह रहा है अब वो कभी भी आई कुडेंट, अब कभी उसके लिए खाना नहीं बना पाएगा, कभी बाजार नहीं जा पाएगा, कभी पूरे पूरे सेंटेंस लिखना नहीं सीख पाएगा जो अनिल उसको सिखा रहा था. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. वो जल्दी एक्साइटमेंट में, यानी कि पैसा देख के उसका दिमाग ख़राब हो गया. उसको लगा मैं चोरी कर लूँ, क्योंकि उसकी वो हैबिट थी. तो एक्साइटमेंट में आ गया, एकदम से उत्साह हो गया उसके अंदर. और इस एक्साइटमेंट में वो ये भूल गया कि अनिल उसकी लाइफ के लिए कितना काम कर रहा था. तो एक्साइटमेंट यहाँ पर क्या था? एक स्टिमुलेशन. एक्साइटमेंट माने स्टिम्युलेशन, STIMULATION, स्टिमुलेशन. स्टिमुलेशन माने क्या था? उत्तेजना. तो इस उत्तेजना में वो ये भूल गया कि अनिल उसके लिए क्या क्या करता था. फिर आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन 100 रुपीज़. और अगर वो वहाँ रहता और पढ़ाई लिखाई कर लेता, कुछ सीख लेता, तो इससे भी ज़्यादा 100 रुपीज़ वो कमाता. इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. बहुत ही सिंपल मैटर है चोरी करना, और चोरी करना आसान है और उससे पकड़े जाना, कई बार पकड़े जाना भी आसान है, ठीक है. आई कुड न्यू
तो हो गया. But to be a real and sometimes just a but to be a real big man, a clever and respected man was something else. तो चोरी करना, पकड़े जाना, ये तो एक कॉमन चीज़ है, ये तो होता रहता लोगों के संग. लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर आदमी बनना, एक रिस्पेक्टेड आदमी बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अलग है. उसकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट था उसकी लाइफ का. जब वो कुछ सीख रहा था, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक रिस्पेक्टफुल आदमी बने. उसने इस अपॉर्चुनिटी को आज खो दिया और पैसे देख के वो एक्साइटेड हो गया और उसकी समझ में नहीं आया और उसने गलती कर दी. नाउ ही इज़ फीलिंग सॉरी फॉर हिज मिस्टेक. सो अब वो क्या सोचता है, आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. उसने कहा मुझे वापस जाना चाहिए अनिल के पास, चाहे मुझे सिर्फ इसलिए रीड एंड राइट के लिए. आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. जल्दी जल्दी घर की तरफ वापस लौटा, बहुत नर्वस था. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट इफ़ इट अनडिटेक्टेड. अनडिटेक्टेड माने क्या होता है, बिना पकड़े हुए, बिना डिटेक्ट हुए, यानी बिना कोई जाने. उसने कहा कि किसी को चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन बिना पकड़े. अनडिटेक्टेड माने अनडिस्कवर्ड. अनडिटेक्टेड के लिए आप अनवर्ड दूसरा वर्ड लिख लीजिए, अनडिस्कवर्ड. ठीक है, तो बिना डिस्कवर हुए, बिना किसी को पता लगे, वो चुपचाप से उस पैसों को वहीं रख देगा. उसने सोचा. आई ओपन द डोर. उसके पास चाबी थी, उसके पास चाबी अनिल ने दे रखी थी. आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड ऑन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट. और फिर वो दरवाजे वहाँ खड़ा हुआ, डोरवे में खड़ा हो गया जाके दरवाजे पर. अनिल वॉज स्टिल स्लीप. अनिल अभी भी सो रहा था लकीली. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड. वो बिस्तर का जहाँ हेड था, जहाँ मतलब उसका माथा था. माई हैंड केम अप विद द नोट्स. उसने अपने हाथ को उसमें गद्दे के नीचे फिर से खिसकाया. ठीक है, और उसने क्या किया, चुपचाप से उसको वापस रख दिया, है ना. यानी कि उसने आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड ऑन द. अनिल वॉज स्टिल. आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड. उसने अनिल जब वो नोट नीचे रख रहा था तो उसने अनिल की सांसों को अपने हाथ पे महसूस किया. आई रिमेन स्टिल. स्टिल माने बिना हिले डुले, स्थिर. फॉर अ मिनट देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड आई स्लिप्ड अंडर विद द नोट्स. और जैसे ही उसको एज ऑफ द मैट्रेस मिला, उसने उसके नीचे अपने उन गद्दों पैसों को खिसका दिया. यानी कि उसने बिस्तर के, जब वो उसके तकिए के नीचे तक गया ना, खिसक कर गया, और उसने धीमे धीमे पहले उसके जहाँ पर वो सो रहा था, यू कैन इमेजिन इन योर माइंड कि वो उसके सिरहाने तक खिसक खिसक कर गया. और फिर उसका नाथ उसमें नोटों के साथ उसका हाथ वहाँ पे गया, और फिर उसे अनुभव हो रहा था उसकी सांसों का. और लेकिन कुछ मिनट तक उसने रखा, फिर उसका सिरा खोज कर गद्दे का उसके नीचे नोटों को रख के अपने हाथ को धीमे से वापस निकाल लिया. इस तरह से उसने नोट को उन्हीं जगहों पे वापस रख दिया जहाँ से उसने उनको उठाया था, और अनिल को ये बात पता भी नहीं चली. क्लियर. लास्ट. आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग. अवेक, अवोक, अवोकन, है ना. 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है ये. अवेक माने जागना, गॉट अप. ठीक है, गॉट अप. एंड फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी. जब वो उठा, सो के उठा, क्योंकि रात भर तो उधर से घूमता फिरता रहा, तो उसको सुबह देर में आँख खुली, और अनिल जब तक जग चुका था, अनिल ने उसके लिए चाय बना दी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी. उसने स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच माने फैलाकर अपना हाथ उसकी तरफ. देयर वॉज 50 रुपी नोट. उसने उसको एक 50 का नोट दिया बिटवीन हिज फिंगर्स. उसने उसको एक 50 का नोट इनाम में दिया. माई हार्ट सैंक. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड. चोर के मन में कहते ना, गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड. गिल्टी कॉन्शियस प्रिक्स द माइंड, यानी चोर के दाढ़ी में हमेशा तिनका होता है. तो उसको लगा शायद वो पकड़ा गया, इसलिए वो 50 का नोट दे रहा है. उसका हार्ट एकदम डूब बैठ गया. आई हैड सम मनी येस्टरडे, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. उसने कहा मुझे कल पैसे मिल गए हैं और अब तुमको मैं हर महीने पैसे दिया करूँगा, तुम्हारी तनख्वाह. माई स्पिरिट्स रोज़. मेरी स्पिरिट्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसकी जो खुशी थी, जो उसकी अंदर ही अंतरात्मा में जो उसको लग रहा था कि वो पकड़ा गया, उसकी स्पिरिट्स, जो उसकी आत्मा थी, वो एकदम से फिर से खुश हो गई, है ना. वो उत्साह बढ़ गया उसका. ही बिकेम हैप्पी अगेन. बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द रेन्स नाइट्स रेन. पर जब उसने नोट 50 का नोट छुआ तो उसने देखा वो नोट गीला था. इट वॉज वेट. ठीक है. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस. उसने कहा आज मैं तुमको सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा. ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. ही न्यू मतलब अनिल जानता था. अनिल केम टू नो, अनिल को पता लग चुका था कि ये रात में चोरी करके भागा है और ये नोट बारिश में गीले करके लाके से दोबारा वापस रखे हैं. ही न्यू एवरीथिंग
बट नीदर हिज लिप्स, ना उसके होठों से कुछ ऐसी बात निकली, नॉर हिज आईज, ना उसका कोई एक्सप्रेशन ऐसा था कि जो ये शो करे कि ही हैज़ कम टू नो। आई स्माइल्ड एट अनिल इन द मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं फिर से अनिल को देखकर अपने चिर परिचित अंदाज में उसने उसको मुस्कुराया, अट्रैक्टिव वे में, अट्रैक्टिंग है ना, अट्रैक्टिंग, उसने अपने अट्रैक्टिव तरीके से आकर्षित करने हुए वाली स्माइल में उसको मुस्कुरा के दिया। एंड द स्माइल केम बैक बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और मुस्कुराहट अपने आप आ गई बिना किसी प्रश्न के। तो ये था चैप्टर आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और आपने देखा इसमें कैसे अनिल ने। ओके, नाउ ये कैरेक्टर स्केच है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी सिंह का कैरेक्टर क्या था? स्मॉल टाइम थीव था। आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर में आता है तो आप इसको लिखेंगे। स्मॉल टाइम थीव था, उसका नाम बदलता था, क्या क्या वो करता था, ठीक है। उसके मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है? उसका स्टाइल, चोरी करने का स्टाइल, मॉडस ऑपरेंडी, ठीक है, यानी कि स्टाइल ऑफ वर्किंग। इज़ दैट ही अर्न्स द ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड देन रॉब्स देम एंड फ्रीज, फिर भाग जाता है। व्हेन ही सीज अनिल, ही थिंक्स ऑफ रॉबिंग हिम एंड अप्रोचेज एंड आज, ये पूरा उसका चोरी के बारे में ही है, ठीक है। अनिल लेट्स हिम वर्क एंड इवन स्टार्ट टीचिंग हिम हाउ टू कुक। हरी सिंह इज़ डिलाइटेड। अनिल स्टार्ट टीचिंग हिम, अनिल उसको पढ़ाना लिखाना सिखाता है, और उसके बाद वो उसको ओके। तो इस तरह से आप इसके कैरेक्टर्स को तैयार कर लीजिए, दोनों को पढ़ लीजिएगा इसको। हरी सिंह स्टार्ट्स टीचिंग हिम एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। ही स्टील्स मनी एंड रेड बट ऑन द स्टेशन, ये चेंज ऑफ हार्ट, ये इसके चेंज ऑफ हार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कैरेक्टर हमारा है इसका, दूसरा कैरेक्टर हमारा इसका क्या नाम, दूसरा कैरेक्टर है हरी सिंह का। तो ये दोनों कैरेक्टर्स आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, ओके। और आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनिल का कैरेक्टर, अनिल इज़ अ काइंड, सिंपल एंड ईजी गोइंग. He is tall and lean and has interest in sports like wrestling. He is not very rich and cannot offer. Employer had as a cook. Patience है, goodness है, ये सब इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स, आप इन सबको याद कर लेंगे। और आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया है अच्छे से। And you write your comments and please press the like button because then only I come to know that you have understood or not. And with that, thank you. Have a nice day. Bye. Good night.